اتوار سے پہلے ہی کراچی سے مسافروں کی اندرون ملک روانگی کا سلسلہ تیز ہو گیا۔ شہریوں نے کینٹ اور سٹی ریلوے اسٹیشنز پر ڈیرے ڈال لیے اور عید اسپیشل ٹرینوں میں عوام کی خصوصی دلچسپی ہے۔ اپنی فیملیز کے ہمراہ آبائی شہروں کا رہتے سفر باندھ لیا۔ بس اڈوں پر بھی رش بڑھ گیا ہے۔ مسافروں نے لیاقت آباد انٹرا بس اڈے کا رخ کر لیا ہے اور حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، لاہور، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں کو روانگی ہے۔ شہریوں کا بسوں میں زائد کرایوں کی وصولی کا بھی شکوہ سامنے آیا ہے۔ عید الفطر کی آمد ہے، اپنوں میں عید منانے کا مشن جاری ہے۔ اتوار سے پہلے ہی کراچی سے مسافروں کی اندرون ملک روانگی کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ شہریوں نے کینٹ اور سٹی ریلوے اسٹیشنز پر ڈیرے ڈال لیے ہیں اور عید اسپیشل ٹرینوں میں عوام کی خصوصی دلچسپی دیکھی گئی ہے۔ اپنی فیملیز کے ہمراہ آبائی شہروں کا رہتے سفر باندھ لیا ہے۔ بس اڈوں پر بھی رش بڑھ گیا ہے۔ مسافروں نے لیاقت آباد انٹرا سٹی بس اڈے کا رخ کر لیا ہے۔ حیدرآباد، لاڑکانہ، سکھر، لاہور، راولپنڈی سمیت مختلف شہروں کو روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ کراچی میں مقیم پردیسی اپنوں سے ملنے کو بے قرار ہیں۔ عید کی خوشیاں منانے کے لیے پردیسیوں کی کراچی سے روانگی کا سلسلہ جاری ہے۔ کینٹ اسٹیشن پر مسافروں کا رش بڑھ گیا ہے۔ مزید جانیں گے اپنی نمائندہ عادیہ ناز سے۔ عادیہ، آگاہ کیجیے گا۔ بالکل، کراچی کینٹ اسٹیشن سے بھی اندرون ملک روانگی کے لیے مسافروں کی بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں روانہ ہو رہی ہے۔ میرے بیک پر آپ دیکھ سکتے ہیں پاکستان ایکسپریس کراچی سے لاہور کے لیے جو ہے وہ روانہ ہوئی ہے اور اس ٹرین کو اگر ہم مسافر ٹرین کو دیکھیں تو مکمل پیک ہے۔ تمام مسافر اس کے اوپر سوار ہیں۔ 1000 کے لگ بھگ مسافر جو ہے وہ یہاں سے جا رہے ہیں اور یہی رش جو ہے وہ بیک پر بھی دیکھنے کو مل رہا ہے۔ شاہ زیب سے کہوں گی ذرا آپ کو یہ مناظر دکھائیں۔ ٹرین تو بالکل پیک ہے، لیکن یہ جو پیسنجر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں یہ مزید وہ ہیں جو کہ اگلی آنے والی ٹرین سے سفر کریں گے۔ یہ وہ مسافر ہیں جن کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اپنوں کے ساتھ جا کر عید منائیں اور پھر ابھی کچھ مسافروں سے میری بات ہوئی تو ان کا یہ کہنا ہے کہ عید کا جو اصل مزہ ہے وہ ڈیفینیٹلی اپنوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنوں کو آگاہ کر چکے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں عید منانے کے لیے۔ گھر والے بھی خوش ہیں اور یہ بھی دل سے خوش ہیں کہ ہم اب اپنوں کے ساتھ عید منائیں گے۔ ریلوے اسٹیشن پر یہ مناظر جو ہیں وہ معمول کی بات ہے، کیونکہ ابھی یہ مناظر بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ بہت سے مسافر ایسے ہیں جو کہ دوڑتے ہوئے گاڑی میں سوار ہو رہے ہیں اور ایسا لگ رہا ہے کہ ٹرین کہیں ان کی چھوٹ نہ جائے، کیونکہ ظاہر ہے عید اور اپنے آبائی علاقوں کو بھی اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ سندھ حکومت کا قانون شکن ٹرانسپورٹرز کے خلاف ایکشن ہے۔ صوبائی حکومت کی مختلف بس اڈوں پر کارروائیاں۔ مسافروں کو مجموعی طور پر 2 لاکھ روپے سے زائد کرایہ واپس کروا دیا گیا ہے۔ سیکریٹری ٹرانسپورٹ سندھ عبدالحلیم شیخ کے مطابق 15 سے 15 سے زائد گاڑیوں کے چلان کیے گئے ہیں۔ 80,000 روپے سے زائد کے جرمانے بھی کیے گئے ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ حسن اسکوائر کے قریب ایک شخص کے ATM بوتھ میں پھنسنے کی اطلاع ملی۔ مددگار 15 کی بروقت کارروائی سامنے آئی ہے۔ پھنسے ہوئے شخص کو نکال لیا گیا ہے۔ آپ کو بتا رہے ہیں حسن اسکوائر کے قریب ایک شخص کے ATM بوتھ میں پھنسنے کی اطلاع موصول ہوئی۔ مددگار 15 کی بروقت کارروائی سے پھنسے ہوئے شخص کو نکال لیا گیا ہے۔ مزید جانیں گے شاہ زیب حسین سے۔ شاہ زیب، آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، یہ گزشتہ روز کا واقعہ ہے۔ افطاری سے چند لمحے قبل ایک شہری ATM مشین کے اندر گیا اور وہاں پر جو ہے لاک کرا اس اور اپنا ATM استعمال کرا، لیکن جب وہ باہر نکلنے لگا تو ATM کا جو لاک تھا وہ ٹوٹ گیا۔ 6:30 بجے یہ واقعہ پیش آیا افطاری سے قبل اور جو ہے اس کے بعد 2 گھنٹے تک شہری اندر پھنسا رہا۔ اس نے جو ہے پولیس کو کال کری۔ پولیس نے آ کر جو ہے پہلے آڑی سے ATM کا جو بوتھ ہوتا ہے اس کا دروازے کا تالا کاٹا اور اس کے بعد جو ہے شہری کو باہر نکالا۔ مددگار 15 کی اطلاع کے مطابق جو ہے پولیس کو جب اطلاع ملی تھی تو بروقت کارروائی کرتے ہوئے وہ جو ہے 5 سے 6 منٹ کے اندر ATM بوتھ تک پہنچ گئی تھی اور شہریوں کو جو ہے حفاظت باہر نکال لیا۔ شہری کا کہنا ہے کہ اندر سانس نہیں آ رہی تھی اور دم گھٹ رہا تھا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ شاہ زیب۔ مہنگائی کی بات کریں تو عید سے قبل ہی گراں فروش بے قابو ہو گئے ہیں۔ پکوانوں کا اہم جز ہرا مسالہ قوت خرید سے باہر ہو گیا ہے۔ دھنیے پودینے کی گڈی 10 روپے مہنگی ہو کر 20 روپے کی ہو گئی ہے۔ تمام اقسام کی مرچیں 240 روپے فی کلو تک پہنچ گئی ہیں۔ شہریوں کے لیے بریانی اور کڑاہی بنانا بھی مشکل ہو گیا ہے۔ ٹماٹر 20 سے 40 روپے تک مہنگا 120 روپے کلو تک فروخت ہونے لگا ہے۔ پیاز 80 روپے فی کلو سے نیچے نہیں آ سکی۔
शहर में ईद से कबल ही सब्जी मंडी और इलाकाई बाजारों में मुनाफा खोरों की इजारा दारी। धनिया पुदीना की फी गड्डी 10 रुपए महंगी होकर 20 रुपए की हो गई। तमाम इकसाम की मिर्चें 240 रुपए फी किलो तक पहुँच गयी। लीमू ताहाल 800 रुपए फी किलो पर दस्तयाब है। लहसुन अदरक 250 रुपए से लेकर 400 रुपए फी किलो पर दस्तयाब है। शहरियों ने मुनाफाखोरी पर हुकूमत और मुतालिका अदालतों से शिकवा किया है कि कोई पुरसाने हाल नहीं, जिसकी जो मर्जी है वो उस रेट पर सब्जियां फरोख्त कर रहा है। बहुत महंगी हो, जैसे कि बंद गोभी का हिसाब लगाया, बंद गोभी 30 रुपए किलो थी, अब 80 से 90 रुपए किलो मिल रही है। ये रमज़ान में ऐसा ही होता है, हर जगह ही होता है ऐसे, क्योंकि हमें कोई पूछने वाला नहीं है यहाँ पर, इस वजह से हर चीज़ महंगी होती है। पूरी दुनिया के अंदर जितने गैर मुस्लिम हैं उनका जब त्यौहार आता है वो आधे कर देते हैं रेट। दूसरी जानिब शलजम, पालक, चुकंदर, लौकी, तुरई समेत दीगर सब्जियों की कीमतों में इस्तेकाम बरकरार है। मुनाफाखोरों के खिलाफ रोजाना की बुनियाद पर जुर्माने और कार्रवाइयाँ भी कारगर साबित रही हैं। कैमरामैन शाजिब के हमरा, बसीम इफ्तिखार, सिटी 21 न्यूज़। के इलेक्ट्रिक को कराची के शहरियों पर तरस न आया। नेशनल ग्रिड से जायद बिजली मिलने के बावजूद लोड शेडिंग जारी है। मुख्तलिफ इलाकों में शदीद गर्मी में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश है। लियारी, कोरंगी, औरंगी टाउन, बल्दिया, लाइन्स एरिया में भी बिजली गायब। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, शाह फैसल, शीरी जना, मंजूर कॉलोनी की भी बत्ती गुल है। सहरो अफ्तार के औकात में लोड शेडिंग शहरियों के लिए दर्द सर बन गई है। बढ़ने के साथ आवाम की मुश्किलात मज़ीद बढ़ गईं। के इलेक्ट्रिक की जानिब से माह रमज़ान में भी एलानिया गैर एलानिया लोड शेडिंग, सहरो अफ्तार समेत दिन के औकात में भी बिजली की बंदिश मामूल बन गई। बिजली की बंदिश से मंजूर कॉलोनी, अख्तर कॉलोनी, कश्मीर कॉलोनी, आजम बस्ती, कोरंगी, बल्दिया, जैकब लाइन्स, बजट लाइन, न्यू कराची, सरजानी टाउन, यूसुफ गोट, तेसर टाउन, गडाब, स्कीम 33, टीचर सोसाइटी, शाह फैसल कॉलोनी, लियारी, किमाड़ी, श्री जीना कॉलोनी, गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, गुलजार हिजरी, मलीर मॉडल कॉलोनी में सहरी के वक्त 6 से 8 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बदतरीन लोड शेडिंग के बायस शहरी शदीद ज़हनी अजियत का शिकार हो रहे हैं। घरों में मौजूद खवातीन, बच्चों और बुजुर्गों को शदीद मुश्किलात का सामना है। के इलेक्ट्रिक को नेशनल ग्रिड से 1000 मेगावाट से जायद मेगावाट बिजली मिल रही है। कराची में लोड शेडिंग का जिन बेकाबू है। महमूदाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में 8 से 10 घंटे बिजली की बंदिश जारी है। शहरी शदीद गर्मी में लोड शेडिंग से बिलबिला उठे हैं। शहर कायद में शदीद गर्मी और हब्स का राज है। ऐसे में के इलेक्ट्रिक की जानिब से बिजली की एलानिया और गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग ने शहरियों का जीना अजीरन कर दिया। महमूदाबाद के मकीनों का कहना है कि यकम रमजान से मुस्तस्ना इलाके में भी दिन में 4 मरतबा 2-2 घंटे की बंदिश का सिलसिला जारी है। शहर में भी बिजली गायब होती है, ताक रात में भी बिजली गायब रही। बिजली की लोड शेडिंग ये है कि बड़ा परेशान किया हुआ है बिजली वालों ने, अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। पहले तो 1 घंटा जाती थी, अब 2-2 घंटे भी जाने लगी है। मतलब बहुत ही इस दफ़ा तो रमज़ान में इन्होंने बहुत तंग किया हमें। दूसरी जानिब के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि शहर में कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। हाई लॉस एरियाज में बंदिश की जा रही है। कोशिश है कि सारिफीन को रिलीफ दिया जाए। कैमरामैन शाहजेब हुसैन के साथ हबीब खान, सिटी 21। शहर कायद में सूरज का पारा हाई है। गर्म हवाएं चलने की वजह से शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ईद पर कराची का मौसम नॉर्मल रहेगा। मौसम का मजीद अहवाल जानते हैं। नुमाइंदा शाहजेब हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। शाहजेब, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर कायद में मौसम के हवाले से बात की जाए तो इस वक्त जो शहर का जो दर्जा हरारत है वो 37 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि आज जो कम से कम जो दर्जा हरारत जो रिकॉर्ड किया गया है वो 29.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। इस वक्त जो शहर में हवाएं चल रही हैं वो 12 से 14 नॉटिकल माइल के हिसाब से चल रही हैं और इस वक्त हवा में जो नमी का जो तनासब जो रिकॉर्ड किया जा रहा है वो 35% रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो कराची में जो हालिया गर्मी है वो 2 मई तक जारी रहेगी और ईद में कराची का जो मौसम है वो नॉर्मल रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में जो हालिया गर्मी है इसकी वजह से जो है हवा में नमी का तनासब जो है वो ज़्यादा गिर गया है। ताहम इसी वजह से जो है गर्मी की शिद्दत में इजाफा देखने में नज़र आ रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये जो हालिया गर्मी है 2 मई तक जारी रहेगी। जी, जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश महंगी पड़ गई है। कराची से सऊदी अरब जाने वाले 2 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुसाफिर शाहिद खान और अफजल खान जाली पासपोर्ट और वर्क वीज़ा पर सऊदी अरब जा रहे थे। इमिग्रेशन अफसरान रियाज खान और गुलशेर ने इनकी सफरी दस्तावेजात को मशकूक करार दिया और छानबीन में दोनों मुसाफिरों के पासपोर्ट्स के बायोडाटा पेजेस तब्दील निकले। नादरा काउंटर ने भी शनाख्ती कार्ड जाली होने की तस्दीक कर दी।
अहम खबर है, आपको बता रहे हैं कि जाली दस्तावेजात पर बैरून मुल्क जाने की कोशिश महंगी पड़ गई है। कराची से सऊदी अरब जाने वाले 2 मुसाफिर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। मुसाफिर शाहिद खान और अफजल खान जाली पासपोर्ट और वर्क वीज़ा पर सऊदीया जा रहे थे। इमिग्रेशन अफसरान रियाज खान और गुलशेर ने इनकी सफरी दस्तावेजात को मशकूक करार दे दिया। ईद उल फितर के मौके पर कैदियों के लिए अच्छी खबर है। सिंध हुकूमत का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान है। कैदियों की सजाओं में 6 महीने की सजा में कमी होगी। आपको बता रहे हैं, ईद उल फितर के मौके पर कैदियों के लिए अच्छी खबर है। सिंध हुकूमत का कैदियों की सजाओं में कमी का ऐलान है। मज़ीद जानेंगे, इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। इक़्तिदार, अपडेट कीजिएगा इस हवाले से। बहुत शुक्रिया आपका। सिंध हुकूमत ने ईद उल फितर के मौके पर सूबे भर की मुख्तलिफ जेलों से 1202 कैदियों की जो सजा है उसमें 6 महीने तक का रिलीफ दिया है। ऐसे कैदियों पर होगा जो सजाए मौत, अगवा बराए तावान, कत्ल या रियासत के खिलाफ किसी मुहिम जोई में मुलविस नहीं है, यानी कि मामूली जुर्म में वो शामिल है। सूबे भर की जो जेल है उनमें सबसे ज्यादा जो कैदी हैं वो कराची सेंट्रल जेल के 371, हैदराबाद के 264, सक्खर के 233 और सबसे कम जो है वो स्पेशल वुमेन जेल हैदराबाद से 3 कैदियों को रिहा किया जाएगा, की सजाएं माफ की जाएंगी। मजबूरी तौर पर 1202 कैदी हैं सूबे भर में जिनको 6 माह यानी कि 180 दिन का रिलीफ दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया इक़्तिदार अनवर। ईद के मौके पर दुकानें जेंट्स कुर्ता शलवार की नई वैरायटी से सजा दी गई हैं। इस ईद पर कंट्रास्ट की बजाय एक जैसे रंग के कुर्ता शलवार लोगों के साथ मुतारिफ करवाए गए हैं। मज़ीद जानते हैं बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइए। आज बिल्कुल शहरियों की जानिब से ईद की तैयारियां जो है वो जोरों शोर से जारी हैं। इस वक्त मैं सदर की कोऑपरेटिव मार्केट में मौजूद हूँ और ईद की मुनासबत से जो दुकानदारों हैं उन्होंने जो है वो मर्द हज़रात और बिल्कुल नौजवानों के लिए शलवार कमीज़ की मुख्तलिफ वैराइटीज़ जो है वो मुतारिफ कराई है। मुख्तलिफ डिज़ाइन के शलवार कमीज़ से जो है अपनी दुकानों को सजाया गया है। इस वक्त मेरे साथ दुकानदार मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि इस ईद पर कौन कौन से डिज़ाइन और कौन कौन सी वैराइटीज़ जो है वो मुतारिफ कराई गई हैं और इस ईद पर कौन सा स्टाइल जो है वो ज़्यादा इन है। जी देखिए, इस ईद के ऊपर जो सबसे बड़ी जो है इसमें लोगों के साथ जो बने हुए शलवार कमीज़ आप देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड है इसका स्टाइल। और इसके अंदर आजकल जो ट्राउज़र है वो सेम लोग मांग रहे हैं। बच्चे जितने भी, यंग जनरेशन जितनी मांग रही है, सेम ट्राउज़र के साथ इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं वो लोग। पहले हमारे पास कंट्रास्ट पजामे चला करते थे, लेकिन आजकल सेम चल रहे हैं, इसका बहुत ज़्यादा फैशन हुआ है। और जो बड़ी उम्र के हजरात हैं जो वो इस तरह की शलवार कमीज़ मतलब मांग रहे हैं, लेकिन शलवारों का कम डिमांड है हमारे पास और स्ट्रेट पजामे जो है, स्ट्रेट ट्राउज़र ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं लोग। उसमें डिफरेंट डिज़ाइंस देख रहे हैं आप, ये लगे हुए। इसके अलावा इस तरह की ये वेस्ट कोट्स के साथ सूट भी हैं हमारे पास जो बने हुए। ये राउंड अबाउट 3000 रुपीज़ की रेंज से लेके मतलब 1500 रुपीज़ की रेंज तक अवेलेबल है हमारे पास ये तमाम सूट। और डिफरेंट काइंड मतलब इसमें बड़ी उम्र के लोगों के लिए भी हैं और यंग जनरेशन के लिए भी हमारे पास मौजूद है। जी। अच्छा, खरीदारी का रुझान क्या है इस वक्त? खरीदारी का रुझान आजकल थोड़ा सा कम हुआ है, समझ नहीं आ रही क्या वजह। या तो बजट की कमी है लोगों के पास, मैं समझता हूँ कोई ना कोई वजह है ऐसी जो इसकी वजह से प्रॉब्लम नज़र आ रहा है। तो और शायद ये हमारी मार्केट 4 महीने बाद ओपन हुई है, उसकी वो भी एक्ट कर सकता है इस मसले को कि लोगों को शायद पता नहीं है अभी कि हमारी मार्केट मतलब ओपन हो गई है, कोऑपरेटिव मार्केट ओपन हो गई है, शायद लोगों को कुछ नहीं पता। मैं समझता हूँ ये बुनियादी वजह भी हो सकती है कोई, तो इस तरह का सिलसिला है तमाम। ये थे दुकानदार जिनका बताना ये है कि जो बड़ी उम्र के हजरात हैं उनके लिए ये डिज़ाइन जो है या ये कुर्ता जो है वो मुतारिफ कराया गया है, जबकि नौजवानों के लिए इस वक्त जो है वो इस डिज़ाइन का कुर्ता जिसमें लोगो लगाया गया है वो मुतारिफ कराया गया है। और सेम जो है वो ट्रेंड के साथ हमने देखा था कि माजी में जो है वो ज़्यादातर कंट्रास्ट चलता था, ताहम इस बार जो है वो सेम ट्रेंड के साथ ये कुर्ते शलवार कमीज़ जो है वो मुतारिफ कराए गए हैं, जिनकी कीमत जो है वो 1500 रुपये से लेके तकरीबन 3500। वफाकी वज़ीर तजारत नवीद कमर का कहना है कि पाकिस्तान में 2 माह का पाम ऑयल का स्टॉक मौजूद है। उम्मीद है कि पाकिस्तान में पाम ऑयल को जवाज़ बनाकर तेल और घी की कीमत नहीं बढ़ाई जाएंगी। हमारे नुमाइंदे अशरफ खान नवीद कमर के साथ मौजूद हैं, आइए इनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। जी अशरफ, बताइएगा। ये वफाकी वज़ीर तिजारत जो कराची का दौरा किया और टीडैब में भी आए, जो अहम मसाइल पे अहम मीटिंग भी हुई। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं नवीद कमर साहब से। सर, क्या अहम फैसले हुए हैं, क्या देखा गया? आज वज़ीर आज़म साहब ने जो पाम ऑयल पे एक टास्क फोर्स बनाई है जिसमें तमाम मिनिस्ट्रीज़ जो इन्वॉल्व हैं और उसके साथ साथ जो इंडस्ट्री है यहाँ पे जो कि पाम ऑयल को है रिफ़ाइन करती है या पैकेज करके मार्केट में बेचती है, उन सब की एक जॉइंट मीटिंग हमने की। एक मसला जो थोड़ा बहुत चल रहा है दुनिया में कि इंडोनेशिया में एक बंदिश लगा दी गई एक्सपोर्ट्स पे,
उस सिलसिले में आज और भी हमारी एक्टिविटी हुई। ख़ासकर आज सुबह मेरी अपनी जो है टेलीफोन पे इंडोनेशियन जो मेरे काउंटर पार्ट हैं उनसे भी बातचीत की। तो जो इनका एक ये एक्शन है वो बहुत शॉर्ट टर्म है। उन्होंने अश्योर कराया कि ये सप्लाईज जो हैं अगर थोड़े दिनों के लिए रुकी भी हैं तो वो शुरू हो जाएंगी, कोई 8-10 दिनों में हो जाएंगी। पाकिस्तान के पास इस वक्त काफ़ी मिकदार में एडिबल ऑयल जो है वो मौजूद है। माशाल्लाह हमारे पास तकरीबन कोई 2 महीने तक का स्टॉक मौजूद है। तो मार्केट में किसी किस्म की ना तो शॉर्टेज की कोई एक्सपेक्टेशन है और ना ही हम ये समझते हैं कि इसका कोई इम्पैक्ट हमारी अपनी मार्केट पे आएगा। लेकिन हम चाह ये रहे हैं कि हर चीज़ पे नज़र रखें, हर चीज़ को बिफोर टाइम हम असेस करते रहें कि वहाँ तक पहुँचने से पहले प्रीएम्प्टिव मेजर्स हो जाएं। तो आज की मीटिंग्स का ये सबसे बड़ा जो रिज़ल्ट जो है वो ये है कि इंडस्ट्री हो चाहे गवर्नमेंट हो उन सब ने मिल के इस बात का तहिया किया है कि हम किसी सूरत में भी ये शॉर्टेज होने नहीं देंगे और सब इकट्ठे मिल के इस सिलसिले को चलाएंगे। जी, जैसा कि आपने सुना कि यहाँ पे जो वफाकी वज़ीर तिजारत यहाँ पे अहम कराची का जो दौरा किया तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट कि इंडोनेशिया की जानिब से पाम ऑयल की जो एक्सपोर्ट है उस पर पाबंदी लगाई गई थी। उसके लिए तमाम तर इकदाम उठाए गए इंडस्ट्री के साथ मिलकर ताकि कोई शॉर्टफॉल ना हो सके और पाकिस्तान में जो है पाम ऑयल के वाफे में जो स्टॉक मौजूद है इसकी भी कंफर्मेशन की गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। कारोबार का हफ्तावार रुझान मनफी रहा। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 303 पॉइंट्स की कमी हुई। 100 इंडेक्स 0.70% कमी से 45,249 पर बंद हुआ। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 46,199 रही, जबकि कम तरीन सतह 44,648 रही। एक हफ्ते में 30.76 अरब रुपए मालियत के 1.12 अरब शेयर्स का कारोबार किया गया। शेयर्स की कीमत कम होने से सरमायाकारों को 88 अरब रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। मार्केट कैपिटलाइजेशन 7,608 अरब रुपए से कम होकर 7,519 अरब रुपए रही। माहिरीन का कहना है कि टी बिल्स की कट ऑफ फील्ड बढ़ने से मार्केट में खदशात हैं कि शरह सूद में मजीद इजाफा हो जाएगा। महंगाई की रफ्तार बढ़ने और शरह सूद बढ़ने के खदशात पर मार्केट में मनफी रुझान देखा गया। नेशनल बिजनेस ग्रुप के चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ IMF से मुआहदे का कड़वा घूंट पीने के बाद जामे इक़्तिसादी इस्लाहात के जरिए दौलत की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाएं, गाड़ियों और अशियाए तैश की दरामदी बंद करें और हर किस्म के दीगर गैर ज़रूरी दरामदात पर पाबंदी आयद की जाए। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल के IMF के साथ मुज़ाकरात के बाद उम्मीद पैदा हो गई है कि IMF कड़ी शराइत के साथ पाकिस्तान का प्रोग्राम बहाल कर देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को चाहिए कि वो IMF से मुआहदे का कड़वा घूंट पीने के बाद जामे इक़्तिसादी इस्लाहात के जरिए दौलत की मुनसिफाना तकसीम को यकीनी बनाए। इस वक्त मुल्क में बिजली की शदीद तरीन लोड शेडिंग हो रही है, जबकि डीजल भी नापेद हो चुका है। इन हालात में हुकूमत को टैक्स और दीगर इस्लाहात के जरिए सरमाए और वसाइल का रुख अमीर से गरीब की तरफ करने की जरूरत है ताकि अवाम को कुछ रिलीफ मिले और बढ़ती हुई बेचैनी में कमी आ सके। गाड़ियों और अशियाए तय्युश की दरामद बंद और हर किस्म की दीगर गैर जरूरी दरामदात पर पाबंदी आयद की जाए और सालाना 600 अरब रुपए खसारे में चलने वाली सरकारी कंपनियों को फौरी तौर पर प्राइवेटाइज कर दिया जाए।